Yesterday we have started the point, and that is incorporation of the company, or what we can call as a mode of the registration of the company. Okay, some points yesterday we have discussed about the incorporation of the company was that, if you remember, first of all we have talked about the promoter. Promoter is a person who is mentioned as a promoter of the company in the prospectus, or who has been identified as a promoter in the annual returns of the company. Number two, the promoter is the person who is having directly or indirectly as a shareholder or director or otherwise control over the affairs of the company. And number three, promoter is the person on whose advice or directions or instructions the board of directors is accustomed to act. There was a statutory definition of the promoter we have discussed. Okay, then in general, promoter is a person who formed the company. Number two, who get the idea about the formation of the company. Number three, who complete the necessary steps of the registration of the company. But a person who is acting as the only professional, like a solicitor or banker or accountant, that can't be considered as a promoter. Okay. Then we go to the forward on the point of formation of the company, in which we have discussed that public companies there 7 or more person, private companies there 2 or more person, one person companies there 1 person. For a lawful object, they can start the company. For a lawful object, okay, they can start the company by subscribing their names to the memorandum of association. Okay. Then we started the procedure of the incorporation, in which we have to make an application for the incorporation of the company with certain documents and information to be provided to the registrar. Okay, then in which we have first of all seen that the memorandum and article of association should be submitted with the signed by subscribers. Then next one we have discussed that a declaration should be given by the persons who have engaged in the formation of a company, and by the persons who are named in the article as the director or manager or secretary of the company, that all the requirement for registration have been complied with. Okay. Then third point we have discussed, an affidavit should be submitted from each subscriber of the memorandum and the person named as the first director. Affidavit is about what? That we are not convicted of any offense connected with the promotion formation of company. Number two, we are not found guilty of any kind of a fraud or guilt or misrepresentation or breach of duty, etc. Then that all the documents have been filled up with the registrar, contain the information which is true and complete. Then next one, which is added with the document, the address for correspondence. Then next one, particular of every subscriber. Okay, like his name, surname, family name, residential address, etc. Then next one, the particulars of. Then next one is that one, the particulars of the persons mentioned in the article as the subscriber of the memorandum, details of them, and then the first director of the company with their consent letter that they wish to become the director of the company. Okay. Now, if all the documents have been submitted to the registrar and he is satisfied that all the registration formalities have been complied with, then he will enter the details into the register of the companies and issue a certificate of incorporation in the prescribed form with effect. Now this company is incorporated. Okay. Now one concept which was required to be told to you yesterday, that is, we have seen one point that all the directors details with its director identification number. Now what is this DIN stands for? अभी तो आपको डिटेल में नहीं है डायरेक्टर, बट स्टिल कभी इन फ्यूचर आपको वो कंसेप्ट आ जाएगी. शायद सब कुछ लोगों को पता होगा, शायद किसी को नहीं पता होगा. DIN नंबर इज अलॉटेड टू द एवरी डायरेक्टर, और अब आपको कंपनी में डायरेक्टर होने के लिए DIN नंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि आपकी आइडेंटिटी जो होती है ना, वो आइडेंटिटी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर से ही होती है. कंपल्सरी है कि DIN नंबर नहीं होगा तो आप कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो. So every director must have identification number, and that identification number of a director is known as a director identification number. इसका रीजन ये है कि आजकल पूरे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होते हैं. और अगर हमें किसी डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन चाहिए और हम लोग समझो से फॉर एग्जांपल नाम डाल दे कि एक एग्जांपल फॉर्म में ले लेते हैं हम लोग, समझो. इफ यू पुट आउट द नेम चिराग,
as a director, or we want to find out the information of the Chirag. Okay, now how many number of Chirag will be there in the India? No limit has been there. Okay, so how we can get information about the Chirag which we want? हाँ, even with his full name. हाँ, अगर हम लोग वहाँ पे डाल देते हैं तो उस full name की भी 50 लोग होंगे भारत में. हाँ, तो therefore वो information निकालना easy नहीं होगा online form में, क्योंकि बहुत सारे चिराग आ जाएंगे वहाँ पे. अगर हम लोग नंबर डालें तो नंबर एक ही होगा. हमें जिस चिराग की इंफॉर्मेशन चाहिए उनका अगर हमें डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर पता होगा तो ऑटोमेटिकली काम खत्म हो गया वहाँ पे. हाँ, then whereas so director identification number is the identity of that particular director वहाँ पे. हाँ, so if all the details have been complied with, the company will get registered. and अब देखो जैसे डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN नंबर है, हाँ, वैसे ही ना कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है CIN नंबर. वो कंपनी भी हाँ क्या हो सकती है, आपको उसके कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो आपको वो नंबर डाल दो, उस कंपनी की डिटेल्स वहां पे आ जाएंगे. हाँ, और इसका ना एक्चुअली आपको अभी CIN नंबर डिटेल में नहीं है, बट आपके इंटरमीडिएट लेवल पे आपको CIN डिटेल में होगा. या एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर्म के लिए आप कहीं से भी गूगल वगैरह ओपन करके देखना चाहते हो तो यू कैन इजीली गेट द इंफॉर्मेशन. ये जो CIN होता है ना, ये CIN नंबर के जो डिजिट्स होते हैं ना, उसके डिजिट्स कुछ ऐसे मेंशन होते हैं ना कि इससे हमें पता चलता है कि ये कंपनी रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, कर्नाटक, व्हाटएवर. हाँ, एक एक नंबर फिक्स डिसाइडेड है कि कंपनी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी है. हाँ, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, या व्हाट यू कैन सॉफ्टवेयर फील्ड में काम करती है. हर फील्ड के एक नंबर डिसाइडेड है. वो नंबर भी उस कंपनी के डिजिट में होगा तो आपको पता चल जाता है कि हाँ कंपनी सीमेंट से रिलेटेड है, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कंपनी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है. तो वो DIN नंबर की जैसे CIN नंबर बहुत स्पेशल है. हाँ, CIN नंबर से आपको उस कंपनी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आसानी से क्या हो जाती है, वहां पर मिल जाती है. हाँ, so on the from date mentioned in the certificate of incorporation, the registrar should allot a company a corporate identity number. कंपनी को क्या allot करेगा, वो corporate identity number which shall be distinct identity for the company and which shall be included in the certificate. certificate ऊपर ही लिखा होता है, CIN number mention वहाँ पे होता है. हाँ, आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, maintenance of the copies of all documental information. The company shall maintain and preserve all its registered office copies. हाँ, all the document information as originally filled till the dissolution under the act. रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे कंपनी के, सारी जो इंफॉर्मेशन थी कंपनी की, वो कंपनी सारी इंफॉर्मेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करेंगे वहाँ पे, इट विल बी मेंटेन्ड हाँ इनटू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. कहाँ पे मेंटेन रखे जाएंगे, बोलो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में उसको मेंटेन रखे जाएंगे. हाँ, अगर आपने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हुए कोई भी झूठी इंफॉर्मेशन देके कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया है तो वो फ्रॉड है और यू विल बी लायबल अंडर सेक्शन 447. हाँ, कौन से सेक्शन के नीचे पनिशमेंट होगी वहां पे, सेक्शन 447. देखो लास्ट में मैं आपको बता दूं कि 447 की पनिशमेंट क्या है, क्योंकि ये 447 बहुत बार आएगा कि आपने ये वाली गलती कर दी तो पनिशमेंट विल बी अंडर सेक्शन 447. कल भी हमें गया था, याद है आप सबको. हाँ, अभी यहाँ पे भी वापस आ रहा है पॉइंट. हाँ, कि कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन देके या कोई भी मटेरियल फैक्ट सप्रेस करके अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया गया है तो द पर्सन गिल्टी विल बी लायबल फॉर अ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 447. हाँ, इफ एनी पर्सन फर्निश एनी फॉल्स और इनकरेक्ट पर्टिकुलर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और suppresses any material information of which is aware, जानबूझ के झूठी इंफॉर्मेशन देता है या कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सप्रेस करता है तो in any of the document filled up with the registrar in relation to the registration of company, see here what will be the punishment, he will be liable to the punishment under section 447. हाँ, section 447 के नीचे वो किसके लिए liable होगा, बोलो punishment के लिए वहां पे liable होगा. ठीक है. Now next point देखो, company already incorporated by furnishing false or incorrect information or representation or by suppressing a material fact. हाँ, देखो you may have a doubt कि what is the difference between this 5 number and 6 number. हाँ, 5 number में क्या है, देखो वहाँ पे company incorporate करने की वो कोशिश कर रहा है false information देके, और तभी वो पता चला कि उसने जो इंफॉर्मेशन दी है वो क्या है, बोलो फॉल्स है या इनकरेक्ट है, तो वो तो गलती कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो he will be liable for section 447. अब अगर कोई कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, getting what I'm saying,
फॉल्स इंफॉर्मेशन दे के कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, हाँ, अब वो भले ही फॉल्स इंफॉर्मेशन के साथ हो, लेकिन कंपनी क्या हो चुकी है, बोलो रजिस्टर्ड कंपनी हो चुकी है, तो उसको क्या करना है, हाँ, देखो कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन or representation or by suppressing material facts, that is post incorporation, where at any time after the incorporation company incorporate होने के बाद पता चला कि इस कंपनी को रजिस्टर करने के लिए जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो झूठी थी. After the incorporation of company, it is proved that the company has been got incorporated by furnishing false or incorrect information or representation or by suppressing any material fact or information in any of the document or declaration filled up or made for incorporating such a company or by fraudulent action. तो फिर कौन-कौन liable होगा, देखो वहाँ पे the promoter, the person named as the first director of the company, and the person making a declaration, all will be liable for a fraud under section 447. सब लोग किस चीज के लिए liable होंगे, बोलो वहाँ पे fraud के लिए liable होंगे. कौन-कौन fraud के लिए liable होगा, ध्यान में आ गया? Person who are first director of the company, promoter of the company, persons who are making a declaration, all person will be liable for a punishment under section 447. हाँ, 447 की फ्रॉड की पनिशमेंट के लिए सब लोग क्या होंगे, वहां पे लायबल होंगे. हाँ, नाउ देखो ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल. हाँ, ट्राइब्यूनल आपको बताता है ये कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है. कौन सा है वहां पे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT. एंड ट्रिब्यूनल क्या होता है आपको बताया था मैंने, याद है? अगर हाँ आपका जो आजकल का मेथड है आपको परसों बताया था, देखो अगर आपको याद होगा एडीआर मैकेनिज्म. हाँ, एडीआर मैकेनिज्म क्या था, याद है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म. कोर्ट में ना जाते हुए, हाँ, कुछ अलग कोर्ट बनाए जाते हैं जिसमें स्पीडी डिस्पोजल होता है, और उस फील्ड का क्या बैठा रहता है वहां पे जो जज होता है ना, वो पर्टिकुलरली स्पेशलाइज्ड इन दैट फील्ड होता है. तो ये एनसीएलटी कंपनी लॉ का एक अपना ओन स्पेशल कोर्ट है, which is called as the NCLT, National Company Law Tribunal. Tribunal is a type of a court, which generally make a speedy disposal, in which generally कौन बैठा होता है वहाँ पे, स्पेशलाइज्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड वहाँ पे जनरली बैठा हुआ होता है. हाँ, देखो where a company has got incorporated by furnishing false or incorrect information or by representation or by suppressing any material fact or information in any of the document or declaration filled up or made for incorporating the company or by fraudulent action. company incorporate हुई है, but कैसे incorporate हुई है, false information से, incorrect information से, separation of material facts से. तो क्या होगा, देखो the tribunal में on the application being made satisfied that the situation so warrant, हाँ, अगर ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन किया गया है कि ऐसे ऐसे ये कंपनी झूठ बता के रजिस्टर की गई है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छुपा के रजिस्टर की गई है, तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या क्या ऑर्डर कर सकता है. देखो नंबर 1, pass such order for regulating of the management of the company including changes if any in the memorandum and article in the public interest or in the interest of the company or the member or the creditor. हाँ, कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है कि कंपनी के मैनेजमेंट को रेगुलेट करो, मतलब थोड़ा चेंज करो, कंपनी के मेमोरेंडम या आर्टिकल में कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हो तो बता सकती है. नंबर 2, डायरेक्ट दैट द लायबिलिटी ऑफ मेंबर जो लिमिटेड थी क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है ना, और झूठ बोल के कंपनी रजिस्टर की है, तो कंपनी को अगर कुछ नुकसान हुआ तो उन झूठ बोलने वाले मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होगी, बोलो झूठ बोलने वाले मेंबर्स की लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड लायबिलिटी. देन डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी, डायरेक्टली ऑर्डर कर देगी कि ये झूठ बोल के कंपनी रजिस्टर हुई है ना, तो इसके रजिस्टर ऑफ कंपनी से हाँ नाम इनका क्या कर दो, वहां पे हटा दो, या फिर कंपनी का वाइंडिंग अप प्रोसीजर शुरू कर दो, पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, या फिर पास सच ऑर्डर एज इट थिंक फिट, या जो भी कोई सही ऑर्डर है वो पास करने के लिए क्या किया जा सकता है, बोला जा सकता है वहां पे. हाँ, प्रोवाइडेड बिफोर मेकिंग द ऑर्डर, मैंने आपको कल बताया था हमारे इंडिया में कोई भी एक्शन लेने के पहले उसको अपनी साइड प्रेजेंट करने का अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है. ओके, सो द कंपनी शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर, कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है. हाँ, एंड द ट्रिब्यूनल्स आर टेक इनटू अकाउंट हाँ the transaction entered into by the company including obligation if any
कॉन्ट्रैक्टेड और पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी, कंपनी को वाइंड अप वगैरह करने के पहले कंपनी ने क्या क्या ट्रांजैक्शन हाथ में लिए हैं, किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या, किसी का कोई पेमेंट लायबिलिटी है क्या, ये सारी चीजें कंपनी क्या और ट्रिब्यूनल क्या करेगा, चेकआउट करेगा। वापस देखो, नंबर 1 कंपनी का मैनेजमेंट रेगुलेट करो, ऑर्डर दे सकता है। नंबर 2 जिन लोगों ने झूठ बोला उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर सकता है कोर्ट। हाँ। नंबर 3 कंपनी का नाम ही रजिस्टर ऑफ कंपनी से हटा दो, ऐसे ऑर्डर ट्रिब्यूनल दे सकता है। नंबर 4 कंपनी के वाइंडिंग अप प्रोसीजर शुरू कर दो, ऐसे ऑर्डर कोर्ट दे सकता है। नंबर 4 पास एनी सच ऑर्डर एज द ट्रिब्यूनल थिंक फिट, ट्रिब्यूनल को जो भी सही लगे वो अदर ऑर्डर कर सकता है। बट ये कोई भी ऑर्डर करने के पहले ट्रिब्यूनल को कंपनी को अपनी साइड प्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है। हाँ, कंपनी को भी बताने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि जो आरोप उन पे लगा है वो सही या गलत है। साथ ही साथ कोई भी ऑर्डर पास करने के पहले ट्रिब्यूनल शैल चेक आउट the transactions which are entered by the company, any obligations are there on the company about any contract, or is company is liable for any kind of the payments। ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही और बाइंडिंग या रिमूवल ऑफ द नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज की ऑर्डर दी जा सकती है। ओके, नाउ आजकल इजी वे ऑफ रजिस्ट्रेशन है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ले सकते हो। हाँ, सो सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। हाँ, इलेक्ट्रॉनिकली भी कंपनी को क्या किया जा सकता है, वहां पे रजिस्टर करके लिया जा सकता है, which is SPICE। हाँ, the Ministry of Corporate Affairs has various initiative for the ease of business। हाँ, in a step towards ease setting up of business, MCA Ministry of Corporate Affairs has simplified the process of filing a form for incorporation of company। कौन से मेथड के थ्रू ये प्रोसीजर पूरी सिंपल कर दी है, वो जो है SPIC। हाँ, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, दिस इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म। वहाँ पे तो ईज प्रोसेस की है, इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिसमें आप आसानी से, हाँ, दैट इज कंसिडर्ड एज द SPICE प्रोसेस। हाँ, अब देखो कंपनी रजिस्टर हो गई तो उसका इफेक्ट क्या होता है, is the next point we are going to see there on। हाँ, once company got registered उसका इफेक्ट क्या होगा, वो इफेक्ट हमें क्या करना है यहाँ पर डिस्कस करना है। हाँ, इफेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। देखो, एक 2 मिनट में मैं अपने ओन लैंग्वेज में आपको बताती हूँ एंड देन वी विल रीड आउट द लीगल लैंग्वेज। ओके, थोड़ा तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ भी है। वंस कंपनी गेट इनकॉर्पोरेटेड, एक बार कंपनी क्या होगी बोलो, इनकॉर्पोरेट हो गई, तो अंदर के मेंबर की आइडेंटिटी खत्म हो गई। हाँ, कंपनी शैल स्टैंड इनकॉर्पोरेटेड, एक बार वो इनकॉर्पोरेट हो गई तो कंपनी को खुद की इंडिपेंडेंट लीगल एग्जिस्टेंस मिल गया, कंपनी को परपेचुअल सक्सेशन आ गया, कंपनी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है। कंपनी दोनों टाइप की प्रॉपर्टी ले सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी ले सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी ले सकती है। हाँ, साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट देखो, मूवेबल इमूवेबल दोनों टाइप की प्रॉपर्टी कंपनी क्या कर सकती है, ले सकती है। साथ ही साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। हाँ, कंपनी खुद के नाम से सूट भी फाइल कर सकती है और कंपनी पे भी सूट फाइल किया जा सकता है। हाँ, सो वंस कंपनी गेट रजिस्टर्ड, एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग जो कर सकता है ना, वही सारी चीजें एक लीगल पर्सन भी कर सकता है, और वही सारी चीजें करने का अधिकार किसको मिल जाता है बोलो, कंपनी को वहां पर मिल जाता है। तो वंस कंपनी गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो क्या बन जाती है बोलो, लीगल पर्सन वहां पे बन जाती है। हाँ, एंड इनकॉर्पोरेशन इज कंसिडर्ड एज, एक सेंटेंस देखो, प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द ओनरशिप इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सर्टिफिकेट आ गया मतलब आपके पास एक एविडेंस आ गया कि कंपनी अब क्या हो चुकी बोलो, रजिस्टर्ड हो चुकी है वहां पे। हाँ, सिंपल एकदम, एक लीगल पर्सन बन जाती है कंपनी ऑन द रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 9 ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, the subscriber to the memorandum and other person who time to time become the member of the company। सब्सक्राइबर अब क्या बन जाएंगे बोलो, सब मिला के कॉमन में शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, एक कंपनी बन जाएंगे, बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएंगे। उनका आपका खुद का नाम होगा जो मेमोरेंडम में मेंशन होगा। Such a registered company shall be capable of exercising all functions of incorporated company। उसको एक बार रजिस्टर्ड हो गई तो परपेचुअल सक्सेशन रहेगा, याद है ना, परपेचुअल सक्सेशन,
कायम कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, ओके, अंदर के मेंबर आते जाते रहेंगे लेकिन कंपनी का एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए रहेगा। इट कैन एक्वायर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ले सकती है, रख सकती है, बेच सकती है, हाँ, it can acquire the property, hold the property, dispose of the property, both movable भी और immovable भी, tangible भी और intangible भी, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सूट फाइल कर सकती है, हाँ। नाउ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन इन द सर्टिफिकेट द कंपनी बिकम लीगल पर्सन, कंपनी क्या बन जाती है बोले, लीगल पर्सन बन जाती है, which is separate from the incorporators, हाँ। There come existence a binding contract between company and member which is evidenced by the memorandum on article of association. कंपनी और मेंबर्स के बीच में क्या बन जाता है बोले, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये नीचे ना मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वो एक्सप्लेनेशन आया हुआ है। ट्रिब्यूनल मतलब कौन, ट्रिब्यूनल मींस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT, which is constituted under which section देखो 408 of the Companies Act 2013। ट्रिब्यूनल कौन है बताया था मैंने आपको, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, हाँ। एडजुडिकेट मतलब डिसाइड इश्यूज रिलेटिंग टू द कंपनीज इन इंडिया, कंपनी से रिलेटेड सारे इश्यूज को क्या करती है, वो डिसाइड करती है। एंड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश कौन सी तारीख से किया गया, 1 जून 2016 से। भले ही इसको बनाया 2013 एक्ट के नीचे है, बट वो इम्प्लीमेंट कब हुआ है प्रोविजन वहां पे, 2016 1 जून से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल वर्किंग करना क्या किया वहां पे, शुरू कर दिया वहां पे, हाँ। ओके, अगला पैराग्राफ वापस रिपीट है, रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट पे है हम लोग। कंपनी के रजिस्ट्रेशन पे कंपनी क्या बन जाती बोलो, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है until dissolved by liquidation or struck out of the register, हाँ। जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं होती है बाय वाइंडिंग अप, हाँ, या लिक्विडेशन, या कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ द कंपनी से हटाया नहीं जाता है, तब तक एक बार रजिस्टर हो गई ना, भले ही वो फ्रॉडुलेंटली रजिस्टर्ड हुई है, हाँ, एक बार रजिस्टर्ड हो गई मतलब 100% प्रूफ है कि कंपनी क्या होगी बोले वहां पे रजिस्टर्ड हो गई, हाँ। और रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हु बाइज द शेयर्स, हाँ, does not buy have any interest in the property of the company, but certain cases writ petition will be maintained by the company or its shareholder. Generally जो shareholder कंपनी के शेयर्स खरीदता है ना, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट कंपनी में नहीं होता है, हाँ। तो जनरली कंपनी के साथ कोई गलती होती है तो जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होता है, वो पिटीशन कौन फाइल कर सकता है बोलो वहां पे, सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन ओनली, हाँ, कंपनी ही खुद के लिए क्या कर सकती है वहां पर फाइल कर सकती है, बट सम टाइम ये कौन फाइल कर सकता है, अंदर के शेयर होल्डर भी सम टाइम कर सकते हैं अगर उनके इंटरेस्ट पे उसका इम्पैक्ट हो रहा है तो, हाँ। अब ना एक छोटा सा वर्ड आपको समझाना है, आपको शायद लगे कि ये रिट पिटीशन क्या है, हाँ। देखो अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, फंडामेंटल राइट्स सबको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पता है सबको, डेफिनेटली पता होगी, हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना सिटीजन को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए, आपको सबको पता है, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वगैरह, हाँ, सिविक्स में पढ़ा होगा आपने। तो ये फंडामेंटल राइट अगर हमारा वायलेट होता है, अगर कोई हमारा फंडामेंटल राइट जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वो वायलेट करता है, तो हम डायरेक्टली रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। कहाँ पे डायरेक्टली रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं बोलो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, हाँ। तो ये रिट पिटीशन मतलब एक तरह की कंप्लेंट ही है, बट ये स्पेशल पिटीशन होती है। किस पर्पस के लिए फाइल की जाती है रिट पिटीशन, देखो वहां पे, रिट पिटीशन इज जनरली फाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए इसको जनरली फाइल किया जा सकता है, हाँ। नाउ देखो आगे, स्टेट क्रेडिट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, इस केस में कोर्ट ने क्या बोला, a legal personality emerged from the moment of the registration of company, जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ कंपनी को एक लीगल पर्सनालिटी वहां पे मिल गई, एंड फ्रॉम दैट मोमेंट पर्सन सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम एंड अदर पर्सन ज्वाइनिंग आर रिगार्डेड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। रिपीट सेंटेंस वापस वही है ऊपर का, हाँ। एक बार कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो अंदर के मेंबर की खुद की आइडेंटिटी वहां पे नहीं रहेगी, दे विल कंसिडर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इन एग्रीगेट, और वो लीगल पर्सन बन जाएंगे, and legal person being to function as an entity. Company on registration acquire the separate existence. घुमा के वापस वही चीजें दी है कि रजिस्ट्रेशन होते ही कंपनी को खुद का एक सेपरेट एग्जिस्टेंस मिल जाता है, and the law recognize it as a legal person separate and distinct from the member. laws को क्या recognize करता है बोलो, एक separate legal person कंपनी को consider करता है वहां पे, हाँ। It may be noted that now Spencer and Company Limited Madras versus CWT Madras, हाँ,
क्या हेड किया देखो, इट वाज नोटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट कंपनी में परचेज द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। कल ही बताया था देखो, रिलायंस जो है वो रिलायंस क्या टीसीएस के शेयर्स खरीद सकता है? हाँ, रिलायंस कैन परचेज द शेयर्स ऑफ टीसीएस। हाँ, एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है, हाँ, क्योंकि कंपनी एक लीगल पर्सन है ना, तो इसकी वजह से हाँ, वन कंपनी कैन परचेज द शेयर्स ऑफ अनदर company वहाँ पे। However, merely because the company purchase all the shares of another company, it will not serve as a means of putting an end to the corporate character of the another company, and each company is a separate juristic entity। हाँ, अब रिलायंस ने समझो, हाँ, 100% शेयर्स हाँ एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के खरीदे, इसलिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई क्या? नहीं, मैंने आपको बताया था दोनों कंपनी का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। हाँ, एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के सारे शेयर्स खरीदे इसलिए दूसरी कंपनी खत्म हो गई, ऐसे वहां पे नहीं होता है। दोनों कंपनी को खुद का अपना ओन एग्जिस्टेंस है, उस दूसरे कंपनी को खत्म करना होगा तो एक ही मेथड है, प्रॉपर वाइंडिंग ऑफ प्रोसीजर के लिए जाना पड़ेगा वहां पे। हाँ, देन हेवी इलेक्ट्रिक्स यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एज स्टेटेड अबव द लॉ रिकॉग्नाइजेस, वापस वही घुमा के चीज है, कंपनी ज्यूरिस्टिक पर्सन है, सेपरेट फ्रॉम मेंबर है। हाँ, नियर फैक्ट कि entire share capital has been contributed by central government and shares are held by the president of India and other officer of central government। सारा का सारा शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूटेड है, इससे भी कुछ फर्क नहीं क्या पड़ेगा, कंपनी एक इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड एंटिटी है। मेक हाँ एनी डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी एंड इट डज नॉट मेक अ कंपनी एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि सारा शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट के नाम पे है, इसीलिए वो कंपनी का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं, ऐसे नहीं होगा। स्टिल कंपनी विल हैव द इंडिपेंडेंट लीगल एग्जिस्टेंस। हाँ, बार बार आपको वही मुद्दा बता रही हूँ कि एक ही व्यक्ति के पास 99% शेयर होल्डर है तो वो भी वो कंपनी का ओनर नहीं बनता है, कंपनी को खुद का अपना ओन इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस है वंस कंपनी गेट रजिस्टर्ड। हाँ, नाउ इफेक्ट ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, एक छोटा सा लास्ट पॉइंट है वहां पे। हाँ, आर्टिकल सेक्शन नंबर 10 says क्या कहता है देखो, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 where memorandum and article registered shall bind the company and member। एक बार memorandum and article registered हो गए, वो कंपनी पे भी और मेंबर पे बाइंडिंग है to the extent as if they respectively had signed the company and each member an agreement to be observe all the provision of the memorandum and article। All monies payable by the member to the company under the memorandum and article shall be a debt due from him to the company। अगर मेंबर ने कुछ पैसे कंपनी को दिए हुए हाँ इनकॉर्पोरेशन के टाइम, तो वो एक तरह से कंपनी पे क्या होगा, कर्जा होगा जो कंपनी बाद में पे ऑफ कर देगी वहां पे। तो वेरी सिंपल पॉइंट ये कि एक बार मेमोरेंडम एंड आर्टिकल रजिस्टर्ड हो जाता है ना, तो वो कंपनी और मेंबर के बीच में एक एग्रीमेंट बन जाता है और वो कंपनी पे भी बाइंडिंग है और मेंबर पे भी बाइंडिंग है वहां पे। हाँ, सो यहाँ पे हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी का प्रोसीजर और इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी का जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट और प्रोसीजर क्या हो जाता है यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। इफ यू हैव एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट यू कैन आस्क मी दैट डाउट। कुछ डाउट है तो बताओ मुझे यहाँ तक के मटेरियल में।